जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सत्संग लेके आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी आपके कष्ट काटते हैं, आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग सारे संगत परिवार तक पहुंचाई जाती है। और इस सेवा को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि मैं आप सबके सत्संग सारे संगत परिवार तक पहुंचाने की सेवा को करती रहूं। और इस सब के लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी महाराज की कृपा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 2024 ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਰ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2024 ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜਿਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2025 ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ 2025 ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2+5 ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਨੰਬਰ ਹੈ 7 ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਫੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ। ਈਵਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ 2024 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੀਓ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਸ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇੰਝ ਸੰਭਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਦ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी का मेरे पास बहुत टाइम से एक दो बार मैसेज आया कि तेरे घर में जो तेरी काम वाली है उसके दिमाग में तेरे बारे में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, वो तेरा कुछ बड़ा नुकसान करने की सोच रही है और वो तेरा नुकसान तुझे पहुँचा सकती है। तो इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे बताया था, मेरे घर 2 मेड थी, कि तेरी काम वाली कुछ गलत करने वाली है, समय रहते उसको निकाल दे। तो मैंने उस
काम वाली को जैसे ही निकाला था, अगले दिन पता चला था, बाहर पुलिस आई हुई थी, तो उसने किसी और के घर में लाके चोरी की थी। तो मैंने तो उसे अपने घर से निकाला, तो अनंतम शुक्राना। और मैंने अपनी दूसरी बेट से काम करवाती थी, तो उसके मतलब 1-2 महीने के बाद ही गुरुजी का मैसेज आया कि ये जो तेरी काम वाली जो तेरे घर में रोज़ आती है, वो तेरी काम वाली, उन्होंने सत्संग सुनवाया, उसमें वो काम वाली थी कि वो तेरे तेरे बारे में अब तेरे उसके दिमाग में कुछ गलत गलत विचार आ रहे हैं, वो तेरा बड़ा नुकसान करने की सोच रही है और वो तेरा नुकसान कर भी सकती है, तो ध्यान रख। तो सच बताऊँ तो मुझे काम वाली तो सत्संग में तो समझ में आ गया, काम वाली तो मैं बोलती गुरुजी अब मैं काम करेगा कौन, इतनी ठंड आ रही है, अब इसमें मुझे दिखने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो मैं उसके ऊपर ध्यान तो देती थी, लेकिन इतना नहीं, मैं मतलब उसको गुरुजी ने तो मुझे साफ कह दिया उसको अपने घर से दूर रख, लेकिन मैं उसको रखी हुई थी कि मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा था मेड का। तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी जो भी है आप, मुझे नहीं पता, या तो आप मेरे को मेड अपने आप ढूंढवाओ, या फिर आप इसको मतलब कुछ ही अपने आप निकालना और मेरी दूसरी मेड को अपने आप एडजस्ट करवाना। तो मैं कहाँ से ढूंढूंगी, मेरी इतनी ठंड का टाइम है और मेरे बच्चे भी छोटे, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो आप ही कुछ करो। और आप मानोगे मैं उस मेड के ऊपर ध्यान तो देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कुछ कर सकती है। और मैं अपने गुरुजी के रूम में जैसे बैठी थी, जिस रूम में गुरुजी का स्वरूप है, मेरी मेड वहाँ आई और अपने आप बोली, ये रबर, उसने मेरे जूड़े पे एक रबर बैंड, रफल जो होता है रबर बैंड लगा कर उतारती, बोलती ये मैंने आपका वहाँ से लिया था। तो मैं एकदम शॉक्ड, मतलब, और मैंने उनको बोला आपने यहाँ से चीज़ उठा भी ली और लगा भी ली, नया रफल उठा लिया, और आप उसके बाद मुझे बता रही हो आधे घंटे के बाद कि आपने मेरी ये चीज़ ले ली। उसके बाद एक्चुअली वो रफल लगाने के बाद सीधा कपड़े धोने चल गई, और कपड़े मैं ड्राई करवाती हूँ, मशीन में डलवाती हूँ। जैसे वो मशीन के पास जाते भी मैं देखती क्या, अभी उनके बैक साइड थी, और वो पहले ही बोल पड़ी कि गुरुजी के रूम के अंदर एंटर करते खुद बोली वो, मैंने ये आपका रबर लिया था, और इतने एटीट्यूड से बोली। और मैंने बोला आपने मेरे घर से रबर उठाने के बाद, बेशक वो छोटी सी चीज़ थी, और उठा भी लिया थे, कॉन्फिडेंस से बता रही कि मैंने उठाया था। तो मैंने उनको बोला आपको शर्म नहीं आती, आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें खुद बिना पूछे दे देती हूँ, और आपने मेरे से बिना पूछे चीज़ उठाकर लगा भी ली, और आप 1 घंटे के बाद मुझे बता रही हो। तो मैंने उनको डांटा, और मानोगे संगत जी, उसने गुरुजी के रूम के अंदर एंटर करते अपने आप बोला, मतलब गुरुजी ने उससे बुलवाया, गुरुजी मेरा ध्यान दिलवा रहे थे, ये देखो चीज़ें उठाती है, अगर वो चीज़ मुझे खुद भी ना बताती मुझे पता भी ना चलता। और उसके बाद मैंने उसको इतना डांटा, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर खड़ी रही नेक्स्ट डे भी संगत जी। तो जैसे कि गुरुजी ने मुझे अलर्ट करवाया, देख तुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं इतनी शॉक्ड, मतलब ये मैं इतना कॉन्फिडेंस कि मेरी चीज़ घर से चीज़ उठाई, बेशक वो जितने की भी हो, उठाने के बाद इतने कॉन्फिडेंस से मुझे जेनिफर ने उनको डांटा, तो बोली फिर क्या हो गया, 1 रुपये का रबड़ ही तो उठा लिया तो क्या हो गया। बात रबर की नहीं है, मतलब उसने ये चीज़ उठा ली, और मैंने उनको डांटा, और उनकी आंखों में आंसू तो था, और वो बोली फिर क्या हो गया, मैं तुम्हारे घर में कोई चोरी थोड़ा ना कर ली, मैंने कोई जेवरात तो ना उठा ली। तो मैंने कहा मेरे घर में कुछ भी चीज़ चोरी होगी तो मैं यही समझूंगी ना कि वो आपने ही उठाई थी, क्या पता आपने कुछ और भी उठाया हो, तो आपने मतलब मेरे से भी कुछ उठाया क्यों, मैं आपको बिना पूछे इतनी सारी चीज़ें दे देती हूँ, तो आपका ये मतलब नहीं बनता तो उठाने का। तो उन्होंने रिग्रेट तो फील किया, मुझे लगा उन्होंने अंदर से रिग्रेट फील किया, तब तो वो चलेगी। नेक्स्ट डे काम कर रही थी, तो मैं जहाँ जहाँ वो जा रही थी, अब तो मुझे समझ में आ गई थी ऐसे काम करती हैं। तो मेरे बच्चों के स्टडी टेबल के नीचे एकदम नया जो इरेज़र होता है बच्चों का रब करने के लिए, तो वो नीचे एकदम नया पैक इरेज़र था। तो मैंने उनको बोला आंटी नीचे से उठाकर ऊपर रख देना। तो मैंने उनको बोला, उसके बाद मैं उस रूम से बाहर चली गई, उस रूम में कोई भी नहीं आया, उन्होंने वहाँ से सफाई कर ली। झाड़ू करने के बाद वो दूसरे रूम में आई, और जैसे वो दूसरे रूम में, मेरी डॉटर उनके साथ ही थी, तो मैंने उस रूम में कोई नहीं आया जिस रूम में इरेज़र गिरा था उनके झाड़ू लगाने के बाद। तो मैंने आवाज़ लगा के बोला आंटी आपने यहाँ से इरेज़र उठा के ऊपर रखा था। तो शी सेड हाँ मैंने रखा है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मिल रहा, कहाँ पर है। तो उनको था कि ये तो ध्यान दे रही है, तो बोली मैंने तो यहीं रखा था। तो वापस वो वहीं से बोली दूसरे रूम से, और मेरी डॉटर उसी रूम से दूसरे रूम से बोलती है जहाँ पर आंटी जी झाड़ू लगाने गई थी बाद में, मम्मा ये बेड के नीचे ये रबर गिरा पड़ा है। तो उस रूम में, मतलब जिस रूम से चोरी किया उन्होंने, वहाँ पे कोई भी नहीं है, बस मेड वहाँ से साफ करके चली गई, और उन्होंने स्वेटर में अपने पॉकेट में छुपा लिया होगा। और जैसे मैंने पूछा, उनको था कि इसने अलर्ट हो गई है, कि इसको पता चल गया कि मैं, मतलब ये मेरे से पूछ रही है, ध्यान रख रही है चीज़ का, तो उसको था कि मेरे पे शक जाएगा, इसने रबर अपने पॉकेट पे रख के ऐसे बेड के नीचे फेंक दिया। शक मेरा उन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि सफाई करने के बाद उस रूम में कोई भी नहीं गया था, मेरे बच्चे मेरे साथ बाहर थे और मेरी डॉटर भी बाहर थी, मतलब उन्होंने ही उठाया वहाँ से और बेड के नीचे फेंक दिया। तो बोल तो मैंने उनको इनडायरेक्टली सुना दिया, लेकिन मैं हफ्ते से उनके सिर पे ही खड़ी होकर काम करवा रही थी, और अब मैंने उस मेड को हटा दिया।
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ही मुझे एक मेड खुद भिजवाई जो कि हमारे ऊपर फ्लोर पर जाती, उसने मतलब मेरी बेल बजा दी गलती से, मैं उसके पास गई भी नहीं थी, और वो ऊपर ना करके काम वो मेरे यहाँ ही लग चुकी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग मेरा 3 जनवरी 2025 का है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका दिया और वहाँ पर मुझे जोड़ाघर में सेवा दी गई। इसके लिए संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे माल का सदांग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मेरे और मेरे पूरे परिवार पर हो रही है। तो कभी हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो 777 की गाड़ी, 777 की गाड़ी या 7 कोई भी एंजल नंबर हम बार बार दिखते हैं। मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा हमारे अंग संग रहती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद उस सत्संग के बाद हमें जो हमारे प्रमुख सेवादार हैं, उन्होंने हमें जो लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है वहाँ पर जो सत्संग, ओपन सत्संग होगा, बहुत बड़ा सत्संग होगा गुरु जी का। उसके लिए भी गुरु जी संगत जी मुझे जोड़ाघर में सेवा के लिए चुना गया है। ये सेवा देने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे माल का शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी की दात बहुत है। शुक्राना मेरे माल का शुक्राना। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग ऐसे ही हमारे पे और पूरी संगत पे बनाए रखना। शुक्राना गुरु पास शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब अगले सत्संग की मैं तैयारी जल्दी ही करूँगा। तो अब मैं अपने जो मेरा सत्संग आंटी जी शेयर करेंगे उनके ऊपर भी गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे, और जो संगत मेरा सत्संग सुनेंगी उन पर भी गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि 31 को और 1 जनवरी को हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो मेरे सत्संग शेयर हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से 31 दिसंबर और 1 जनवरी हमने बड़े मंदिर में ही गुरु जी के शरण में बिताई। बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं आपको उसका पूरा प्रकरण बताऊंगी कि क्या क्या कैसे प्रोग्राम हुआ और कैसे गुरु जी ने हमारे ट्रिप को ब्लेस किया। संगत जी, सबसे पहले तो हमारा जो प्रोग्राम था सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा और मेरी छोटी बेटी का ही प्रोग्राम था जाने का, लेकिन सडनली रात में अप्रॉक्सीमेट 10:30 के अराउंड मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँगी, मैं भी चलूँगी। उसके हस्बैंड अंकल पहले मान नहीं रहे थे जाने के लिए, लेकिन जब उसने बताया कि मेरी छोटी बहन जा रही है तो उन्होंने भी कहते ठीक है तुम भी चले जाओ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके हस्बैंड गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो अचानक से उसका प्रोग्राम बन गया। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बहन हम तो 2 जनवरी को वापस आएंगे, तो फिर तू वापस कैसे आएगी? तो उसने कहा वो मैं मैनेज कर लूँगी। तो मैंने उससे कहा तेरी एक मतलब फ्रेंड है वो भी गुरु जी को मानती है, उनसे भी पूछ लो वो भी हमारे साथ चले। तो उसने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उसने भी अप्रॉक्सीमेट 11 o'clock के अराउंड उसने उसको फ़ोन किया, वो भी मान गई चलो मैं भी चल रही हूँ। तो 11:30 को मतलब रात के 11:30 बजे 30 तारीख को ये प्लान हुआ कि फिर हम पाँचों जा रहे हैं मतलब। तो फिर क्या हुआ, फिर हम 31 की मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग उनको लेने पहुंच गए, अपनी दीदी को, उसकी फ्रेंड को, और फिर हमने सबसे पहले गुरुद्वारे में दर्शन किए।
गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया। ट्रिप बहुत अच्छा रहा गुरु महाराज जी की कृपा से। लेकिन रास्ते में मेरी सिस्टर को और उसकी फ्रेंड को दोनों को वॉमिट हो गई थी। वॉमिट में जब वो अपने आप को वॉश कर रही थी तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने अपना जो मोबाइल था वो कार के ऊपर रख दिया। उसको पता नहीं था। फिर हम लोग अपना आराम से चल पड़े फिर से। इतने में ही उनकी जो बुआ जी है उनका फ़ोन आया मेरी सिस्टर के नंबर पे कि उसका मोबाइल कहाँ है, किसी को उसका मोबाइल मिला है। उनका फ़ोन आया है कि ये मोबाइल पड़ा हुआ मिला है, किसका नंबर है ये। तो हमें पता चला कि उनका मोबाइल खो गया है। हमने बहुत उनसे बात करी कि मुरादाबाद में कहाँ पर है फ़ोन, हमें बता दो, हम ले लेंगे। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका मोबाइल आपके घर तक पहुँचा दूँगा, आप टेंशन फ्री रहो। इससे हमारी थोड़ा सा टेंशन थोड़ी सी क्रिएट हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग फिर अच्छे से बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ बड़े मंदिर में जाके सब कुछ भूल गए थे और गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन हुए हम लोगों को कि कुछ कहने की नहीं। और सेवादारों का के बारे में तो क्या कहें कि मतलब क्या बताया जाए। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, पार्किंग से लेके पूरे दरबार तक सब जगह रेड कारपेट बिछाया हुआ था। गुरु जी ने यही सबके मन में डाला था कि मेरी संगत को किसी को भी एक कंकड़ भी ना चुभे, तो उन्होंने पूरी सड़कों पर हर जगह रेड कारपेट लगाया हुआ था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कम से कम 1.5-2 लाख बंदे थे और सब मानिएगा आप किसी को ज़रा सा धक्का भी नहीं लगा कि किसी ने धक्का भी मारा हो। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से प्रसाद हुआ। मैंने तो दोनों दिन दर्शन करे के 31 को भी करे थे, 1 को भी करे थे। संगत जी जहाँ मंदिर में हमने दर्शन करे उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो अब हम घर के लिए निकलते हैं, तो उसको हमने वहाँ से ऑटो करा दिया था बड़े मंदिर से ISBT के लिए और हम लोग होटल ढूंढने के लिए निकल गए संगत जी। मतलब आप मानिएगा 31 दिसंबर की रात थी और हम लोग 7:45 बजे से हम होटल ढूंढते रहे, हमें कहीं होटल नहीं मिला। 9:30 बजे जाकर हमें एक होटल मिला गुरु महाराज जी की कृपा से। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे होटल में रुकवाया, बस वहाँ पर थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तभी हमने गुरु महाराज जी के भरोसे अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी नीचे ही, सब कुछ सही रहा। उधर दीदी जो ISBT पहुँच चुकी थी वो वहाँ से हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ आना चाह रही थी, तो वो वहाँ से निकल गए थे। लेकिन रास्ते में उनकी बस का टायर फट गया और बहुत बहुत मुश्किल हो गई उन लोगों को आने के लिए, उनको बस चेंज करनी पड़ी। और चलो बस तुरंत आ भी गई, ऐसी परेशानी नहीं हुई, मतलब 2 मिनट के लिए परेशानी हुई और तुरंत दूसरी बस आ गई, उसने बैठा भी लिया। लेकिन उसने जहाँ हम रहते हैं उससे कम से कम 15 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। रात के 3:30 पौने 4 बजे दोनों लेडीज़ हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 15 किलोमीटर दूर उतरी हुई थी। और वो भी तब जब उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि हम लोग नहीं आ रहे हैं साथ में उसके वापस। तो मतलब गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी कि वहाँ पे जो ऑटो वाला था वो उनको अच्छे से उनके घर छोड़ के गया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से किया। आपके दर पर हम दर्शन करने गए थे तो कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता था। गुरु महाराज जी शुक्राना। उधर दीदी की फ्रेंड का भी मोबाइल उनके घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंच चुका था, तो उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बड़े मंदिर में पहुंचते ही मेरे हस्बैंड अंकल के पास फिर से, तब से पहली बार जब हम गए थे तब भी उनके पास 4 सत्ते वाले नंबर से कॉल आई थी और बड़े मंदिर पहुँचे इस बार भी, तब भी मेरे हस्बैंड अंकल के पास 4 सत्ते वाले नंबर से इस बार भी कॉल आई थी। तो उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। 1 तारीख को हमने बंगला साहिब के भी दर्शन करे, गुरुद्वारे के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पर। मतलब मेरे मन में था कि 1 तारीख को हमें वहाँ पे बाहर जैसे बैठने के लिए थोड़ा सा दिया जाता था मौका, वो नहीं दिया था, तो वो चीज़ मेरे मन में थी। लेकिन वहाँ बंगला साहिब में ही गुरु महाराज जी ने वहाँ पे हमें मेन गुरुद्वारे में जहाँ 1-1.5-2 लाख बंदों की भीड़ थी, गुरुद्वारे में अंदर बैठने का मौका मिला और वहाँ पे अरदास भी मिली। तो गुरु महाराज जी ने ये दिखाया कि सब कुछ एक ही है, मैं सब जगह हूँ। वहाँ पे हमें अरदास करवाई, आनंद साहिब का पाठ सुना, मतलब बहुत अच्छा हुआ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। मुश्किलें तो आई लेकिन हमें पता है आप हमारे कर्म काट रहे थे। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वहाँ से आने के तुरंत बाद ही हमें 3 तारीख को ही न्यू ईयर के सत्संग में जाने का मौका मिला, जहाँ पर हमें लॉकेट प्रसाद भी मिला। तो उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार के लिए लॉकेट प्रसाद मिला। और फिर 5 जनवरी को भी हमारे यहाँ पर सत्संग था, तो
उसमें भी मुझे लंगर प्रसाद में सेवा का मौका देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। और उस सत्संग में भी आपने तितली के रूप में हमें दर्शन किए, उस चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल लखनऊ गए हुए हैं आज, तो उनको जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन 8 घंटे लेट थी, तो उन्होंने बिल्कुल जल्दी में ही मतलब एक दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन कराया। तो उसके सामने ही इनके साथ जो है को पैसेंजर इनके हैं वो सरदार जी हैं, तो उसका भी शुक्राना। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने ट्रेन अपनी कैंसिल कराई थी। तो वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को गुरु जी सरदार जी के रूप में हमेशा दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना है हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना हर चीज़ का, शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं भी कुछ और भूल गई हूँ तो मैं अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के चरणा च कोट कोट प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिन तो मैनू अपने घर विच ना नेगेटिविटी लग रही सी। नेगेटिविटी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा हो जाना। जहाँ मैं पाठ करती हूँ, जैसे जैसे गुरु महाराज जी कोई बताते कोशिश करती हूँ वो भी कर पाऊँ। गुरु महाराज जी के आगे मैंने एक अरदास लगाई थी, तो मैं आज ही मैं गुरु महाराज जी को कहा, गुरु महाराज जी मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी जो क्यों है, तो उसका मुझे कारण बता देना, कोशिश करूँगी कि मैं उपाय कर सकूँ। तो गुरु महाराज ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया कि जो हमारे दिए जले होते हैं ना दिवाली के, उससे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। मंदिर में कुछ लाल धागे हैं, जैसे ना लाल धागे मीन्स जैसे मेरे बेटे ने एक रुद्राक्ष पहना था, जब वो गया था मैंने उतार के ऐसे ही रखा हुआ था वो, तो वो आप बाहर निकाल दो, उससे नेगेटिविटी आती है। तो ये भी एक सत्संग मुझे सुनाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कोशिश करूँगी मैं, मेरे घर पे जो दिवाली के दिए हैं ना जले हुए वो पड़े हैं। दूसरा एक और बताया कि जोत जो होती है ना, जोत जो होती है वो भी जैसे पुरानी हो जाती है या ख़राब हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो मुझे काफ़ी दिन से एक दिक्कत आ रही थी, मैं जब भी जोत जलाती थी उसके बीच में घी जम जाता था। मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम थोड़ी जलती थी, उसके बाद घी जम जाता था। तो वो भी मैंने कल ही शाम को कहा, मैं गुरु महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, जब पूरा घी जलता क्यों नहीं है, मतलब उसके बीच में रह जाता इसका। तो उसका भी मुझे जिस सत्संग वही कह रहे थे कि जब हमारी जोत थोड़ी पुरानी हो जाती है, उसमें कुछ ना ख़राब हो जाता है, तो क्यों खंडित हो जाती है। तो मैंने वो ध्यान से अभी ये तो नहीं देखा कि जोत खंडित है, लेकिन आज मैं नहीं लेके आऊँगी। तो उसका भी जवाब मुझे मिला। अनंतम 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 शुक्राना। मेरा एक काम था, उसमें बार बार रुकावट आ रही थी किसी वजह से। तो फिर मुझे गुरु महाराज ने कहा कि तेरे मतलब क्यों रुकावट आ रही है तेरे काम में, ये सत्संग सुन। जब मैंने वो सुना, तेरे लिए एक उसका हेडिंग ये था कि तेरे काम में रुकावट क्यों आ रही है, ये सत्संग सुन, तेरे लिए एक आदेश है इसमें। तो मैं जब वो सुना, उसमें ये सब सारी चीज़ें थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कैसे हमारी मन की बात पढ़ लेते हैं, हमारी अरदास कैसे पूरी करते हैं। तो वो आज सारा सामान मैं हटा दूंगी मंदिर से भी, जो पुराने धागे हैं, क्योंकि कई बार कोई दे देता है ना, जैसे बांधने के लिए भी दे देता है, तो हम वो भी थे, वो मैं सारा हटा दूंगी। और दिवाली के पुराने दीवे भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं कल ही हटा दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं ना अमृत वेला करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से जाग तो खुलती थी लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने यही अरदास करी थी गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ठीक है तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, जाग मुझे आती है, लेकिन जब मैं उठना चाहती हूँ मेरे से उठा नहीं जाता। तो कौन सी जो नेगेटिविटी है, तो उसका जवाब मुझे गुरु महाराज ने आज दिया कि इसके कारण न तेरे घर पे नेगेटिविटी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। बस यही कहते मैं अपनी बाणी में इतने विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी हमारे हर चीज़ का जवाब देते हैं। हो सकता है जो मैंने आज सत्संग किया है, किसी संगत को अपने सवाल का जवाब मिल जाए। जो मतलब होता है, जो नेगेटिविटी क्यों आती है, जब क्यों हमारा कोई काम रुकता है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि
गुरु महाराज जी जब भी कोई हमें सत्संग सुनवाते हैं, जहाँ हमारे से कोई सत्संग करवाते हैं, तो वो किसी और संगत को शायद इसका जवाब चाहिए होता है। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। सत्संग करने दे विच कोई भुल चुक हो गए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਕੋਟ प्रणाम। सारी संगत ਨੂੰ गुरु महाराज जी इस तरह ही ब्लैस करना, और जो आंटी जी मेरा सत्संग करते शेयर करते हैं उन्होंने भी बहुत ब्लैस करना गुरु महाराज जी। अपनी बाणी ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ विराम ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे आज भी 2-3 बार मुझे मैसेज आ गया कि अपना आज पहला सोमवार है साल का, तो आज अपना सत्संग ज़रूर शेयर कर। तेरी शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए हमारे जीवन में आए महापुरुष यानी कि परमपिता परमेश्वर हमारे गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग करते हैं, उनकी वड्याई के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी दी हुई नेमतों को लाख लाख बार शुक्राना कहते हैं। उनकी कृपा जो हम पर लगातार बरस रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने जो पूरे परिवार को सुरक्षा कवच दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज मुझे गुरु जी को दिल से शुक्राना कहना है, क्योंकि कुछ देर पहले तक मैं बहुत बेचैन जैसे तड़प रही थी, परेशान हो रही थी। गुरु जी ने इतनी जल्दी मुझे शांति प्रदान की है, वो इस तरह कि मेरी बच्ची कुछ दिनों से बीमार थी। कोई 1-2 तारीख के आसपास उसको शायद तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली थी, पर धीरे धीरे कफ और कोल्ड के कारण जैसे थोड़ा थोड़ा उसने दवाइयों से रिकवर कर किया और फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। अब वो अपनी बुआ के घर चली गई सैटरडे को, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा था, तो बुआ उस सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो मेरे पास नहीं रहती है, दूर रहती है। तो जब बुआ के घर पहुंची, आज उसके कान में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि कफ बीमार होने के बाद इतना बन गया था कि खांसी रुक नहीं रही थी, आवाज़ बदली बदली सी थी, और धीरे धीरे कफ ने कानों में जगह बना ली। और जब सिवियर पेन हुआ कानों में, तब उसका फ़ोन आया और उसकी कांपती आवाज़ ने जैसे मुझे बहुत बुरी बेचैनी दे दी। जैसे मैं तड़प गई कि बच्चा इतनी दूर है और कैसे ठीक होगा। जानती थी कि बुआ है पास में, लेकिन वो जल प्रसाद लेकर नहीं गई, और बुआ या उनकी फैमिली गुरुजी को नहीं मानती। तो मुझे फ़िक्र सा हो गया था कि अब कैसे ठीक होगी वो। मैं लगातार मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से कहती रही। गुरुजी मुझे आश्वासन देते रहे कि मैं बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, और कुछ ही देर में उसका मैसेज आया कि मम्मी मैं रिकवर कर गई हूँ, दवाई आ गई है और मेरा पेन अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत सुकून मिला। गुरुजी, जो आपने मुझे ये सुकून दिया है, ये लाखों करोड़ों सुखों से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरी बच्ची अब ठीक फील कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप लगातार कह रहे थे बच्चों पर संकट है, बच्चों का बहुत ध्यान रखना, इस बात में ज़रा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए कि बात बिगड़े। गुरुजी, आपने सब कुछ खुद ही संभाल लिया, बहुत बहुत शुक्राना। जिसका पिता इतना शक्तिशाली हो, उसे तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, कल हम इनवाइटेड थे एक बर्थडे में। उस बर्थडे पार्टी में पहुंचकर बहुत मस्ती की, अच्छा एनवायरनमेंट था, खुश भी हुए। गुरुजी को भी शुक्राना किया कि अच्छा लग रहा है। बर्थडे पार्टी से बाहर निकले तो जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, वो एक सिंगल लेन की तरह था, उसके दोनों साइड डिवाइडर जैसा था। अब ये गाड़ी मुड़ नहीं सकती थी, वहाँ पर इतनी छोटी जगह थी। मेरे हस्बैंड ने
सोचा कि आगे से रास्ता होगा, लेकिन आगे रास्ता था ही नहीं। अब सिर्फ पीछे वापस जाने का ही रास्ता था। गाड़ी को पीछे उल्टा ही लेके जाना ज़रूरी था क्योंकि वो मुड़ नहीं रही थी। अब नशे में होने के कारण मेरे पति उसको मोड़ने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो जैसे डिवाइडर पे चढ़ गई गाड़ी और मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा अब पता नहीं क्या होने वाला है। आगे आगे वहाँ टकराई, पीछे फिर से दूसरे डिवाइडर में गाड़ी टकराई, मेरी जान पे बनाई। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, और इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही इस वक्त की क्या कर रहे हैं। गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप संभाल लीजिए। फिर धीरे से उनको समझाया, गाड़ी सीधी पीछे लेके जानी है और कोई जगह नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इधर गड्ढा है उधर गड्ढा, किधर जाऊंगा कैसे जाऊंगा। मैंने बोला इसी रास्ते से आए हैं, बस इसी तरह पीछे पीछे वापस चलते हैं। पीछे भी बहुत दूर तक वापस जाना था, कोई आधा पौना किलोमीटर तो होगा ही। तो बस पीछे 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 धीरे धीरे नाम जपते जपते गाड़ी गई। मंत्र जाप किया, गुरुजी प्लीज़ मदद करना। फिर एक आंटी जैसे मदद करने लगी और लोगों को पीछे से हटने के लिए कहने लगी, जिससे कि गाड़ी अपनी रफ्तार के साथ, धीमी सी रफ्तार के साथ पीछे की तरफ हो जाए और हम एक कट मिलने पर मेन रोड पर हो जाएं। बस सांस रोककर गुरुजी का नाम लेते हुए पीछे पीछे चलते गए। गुरुजी ने बहुत साथ दिया। वहाँ से भी गुरुजी ने बहुत नज़दीक से बचाया, क्योंकि जहाँ गाड़ी इतनी बार डिवाइडरों पे टकराई, मुझे लगा अब तो हम गए। पर गुरुजी ने बिल्कुल बाल बाल बचा लिया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। गुरुजी कह ही रहे थे कि 1-2 दिन का संकट है, अपने परिवार के सुरक्षा का ध्यान रखना। पर जहाँ गुरुजी हैं और सुरक्षा कवच दिया हुआ है परिवार को, वहाँ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके घर तक आए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और अंधेरा भी था। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप ना होते तो ना जाने क्या होता। सब कुछ ठीक ठाक हो गया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरे शरीर में कैंसर पनप रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बट तुझे सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुन ले तो तेरी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, और गुरुवार को एक कन्या को कड़ा प्रसाद खिला देना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा बेटी, जब घर से बाहर निकलती है तो अपने साथ अपना पर्स भी रखा कर और अपनी घड़ी भी पहना कर। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर तेरे साथ तेरा पर्स होगा तो तेरा पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। घड़ी पहनने से आने वाला वक्त हमेशा अच्छा रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ये बातों का तू ध्यान रखे। गुरुजी, आइंदा मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूँगी। कल भी जाते समय मैं चाहती थी कि मैं पर्स उठा लूँ, पर मेरे हस्बैंड ने टोक दिया कि कहाँ संभालती फिरेगी, इसलिए रख दे अंदर। तो गुरुजी, कल तो मैं ये फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं हमेशा याद रखूँगी इस बात को। गुरुजी ने कहा एक बात और अपने जीवन में अच्छे तरीके से रख ले कि तेरा हिसाब किताब तो हमेशा मेरे पास रहेगा। मैं तेरे कर्मों को छोड़ने वाला नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो भी तुझे फल मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो भी तुझे फल मिलेगा। तो अपने अच्छे बुरे कर्मों को तुझे ही लेना है, उसका जो भी फल है वो तुझे ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रख, तो गुरुजी भी तुझे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्र रखा कर, सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर, और अपने कर्म अच्छे रख। सबका भला कर, तेरा भला अपने आप हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बताया जो बच्चे बेड में पेशाब कर लेते हैं उनके लिए एक उपाय है। गुरुजी ने कहा जब माताएं आटा गूंदती हैं तो आटा गूंदने के बाद जो पानी बच जाता है, उस पानी में थोड़ा थोड़ा आटा मिला हुआ सा रहता है। तो जो बच्चे बेड में पेशाब कर लेते हैं, ये पानी 1-2 घूंट उस बच्चे को पिला दो तो वो ठीक हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। ये पानी उसके लिए दवा का काम करेगा। उसको 2-2 घूंट रोज पिला दोगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे घर में कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है,
फिर भी ये मैसेज सामने आया है तो मेरा ख्याल है मुझे सजग रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि तेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी कुछ कष्ट बाकी है। उन कष्टों से निपटना है तो एक उपाय कर। उबली हुई उड़द की दाल ले, कच्ची पक्की सी 2 रोटी ले और गाय को खिला दे और गाय को शुक्राना कह देना, तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कल भी गुरुजी मैं गुडली एक कार में गई थी पार्टी पर जाते समय, लेकिन शायद ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण गाय कोई नज़र ना आई, रास्ते में रात हो गई थी। अब मेरी कोशिश है कि आगे जो गुड़ मैं ले आई हूँ उसका गाय तक पहुँचना ज़रूरी है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमेशा मदद करते हैं, तो आगे जैसा आपका निर्देश होगा वैसा ही करेंगे। गुरुजी से एक बार मन ही मन अरदास की थी कि गुरुजी, हमारी सोसाइटी के मंदिर का फर्श अच्छा नहीं बना हुआ है, वो सीमेंटेड है, उसे टाइल्स की ज़रूरत है, कृपा कर मंदिर को अच्छा बना दीजिए गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आज हमारा मंदिर पूरी तरीके से सुंदर बन गया है, टाइल्स लग गई हैं, बस अब थोड़ा थोड़ा काम बाकी है जो जल्दी ही गुरुजी पूरा करा देंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। आज आखिरी टाइल्स भी लग गई, अब बस थोड़ा पेंट होना और अलमारियां लगनी बाकी हैं। वो उससे कोई मंदिर में जाने में अवरोध नहीं पैदा होगा, क्योंकि फर्श लग चुके हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है, दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। पैरों को भी चलते समय जैसे फलक नसीब हो गया है, बहुत सुंदर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, बेटी तुझे बैक पेन रहता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत रहता है, और आप तो जानी जान हैं, आप छोटे बड़े सारे कष्ट बहुत जल्दी देख लेते हैं और उसके लिए उपाय बता देते हैं। गुरुजी ने यह जान लिया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, क्योंकि वहाँ सिजेरियन के कारण 2 एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन लगने से पेन हो जाता है सर्दी में। तो गुरुजी ने कहा, तुझे सिर्फ इतना करना है कि अपने कानों को 15 मिनट का मसाज दे, कानों को प्रेस कर, बस कुछ ही देर में दर्द ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मंत्र जाप की ताकत तुम समझते हो। आज उसका मुझे हिसाब भी पता लग गया गुरुजी। जब मेरी बेटी इतनी दूर बीमार थी तो मंत्र जाप ने ही उसकी रक्षा की, क्योंकि उसके पास तो जल प्रसाद भी नहीं था। उसको समझाया भी था कि मंत्र जाप करके जल प्रसाद बना लेना, पर इस उठापटक में कुछ पूछ नहीं पाई। खैर, अब वो रिकवर कर गई है, बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तेरे पति शराब पीते हैं, अगर उनकी शराब छुड़वाना चाहती है तो ये कर ले उपाय। शनिवार की शाम को शराब की 1 बोतल ले, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, फिर उसे शराबी के ऊपर से 31 बार उतार कर चुपचाप बिना किसी से बात किए किसी बहती नदी के किनारे बोतल को उल्टा गाड़ देना, और उसके बाद हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना। तेरे पति शराब छोड़ देंगे। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ, लेकिन रात के समय बहती नदी तो बहुत दूर है मेरे घर से, कैसे करूँगी, बस यही सोच में पड़ी हूँ। खैर, मुझे यकीन है आप हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा, सब अच्छा होगा गुरुजी। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मेरी कोई संगत अगर अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है तो वो रोज़ रात को सोने से पहले एक चांदी के ग्लास में पानी भरे और उस पानी में अपना चेहरा देखे, अपनी इच्छा धीरे धीरे बोले और उस पानी को पी ले। ये उपाय भोलेनाथ के दिन सोमवार से शुरू करें और 11 सोमवार तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती गुरुजी, बहुत सी इच्छाएं हैं जिनको हम ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा, अगर अमीर बनना चाहते हो, जैसे कि मेरी बहुत सारी संगत का ये एक सबसे बड़ा सपना है, तो आज मैं एक और उपाय लाया हूँ
वह भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक ही गुरुवार करना है। इसमें करना ये है कि 1 चुटकी हल्दी लेनी है पिसी हुई, 2 लौंग लेने हैं फूल वाले, मिट्टी का दीपक तैयार करना है, उसमें फूल बत्ती जलाना है, पिसी हुई हल्दी और 2 लौंग दीपक में डालना है। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपक को तुलसी के पौधे के पास जला देना है। इस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका हर समय हमारे बारे में ही सोचना और हमारी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।